Okay, good morning, everyone, and welcome to the class on healing and deliverance. सुप्रभात और सब लोगों को चंगाई और छुटकारे की क्लास में स्वागत है। Yesterday, we finished studying chapter 2. हमने कल दूसरा पाठ खत्म कर दिया था। Today, we'll begin studying chapter 3. हम लोग आज तीसरा पाठ की ओर जाएंगे। And in chapter 3, we are going to be. Sorry. In chapter 3, we're going to be looking at the Father's works that Jesus did. और हम पिता का जो काम यीशु मसीह ने किया उसके विषय में हम देखेंगे। So the first few pages of this lesson, 101, if you're following the English book, pages 101, 102, 103, 4, 5. Yeah, 4, I think it's still 100 and page 107, top of page 107. So from 101 to 107, 101 से लेकर पन्ना नंबर 101 से लेकर 107 तक इंग्लिश किताब में I'm not going to be going through those the content given here in this book. और ये किताब में जो दिया हुआ टॉपिक है उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। No, I'm not going to look at those हम pages, नहीं 101 to देखेंगे। 103. 1 से 101 से 107 6 top of page 107. 107 के ऊपरी भाग तक हम लोग नहीं देखेंगे। Because I already explained this in chapter 1. और पहले अध्याय में पहले पाठ में हमने इसके विषय में हमने सीखा था। When I explained the points 1 to 4 on pages 12 and 13. और 13 और pages 12 and 13. 13 और 12 और 13वें में जो है हमने उसके विषय में देखा था। There are 4 points on pages 12, bottom of page 12 to page 13. और 12वें पन्ने के निचले भाग में And top of page 13. और 13वें पन्ने के ऊपरी भाग में We already looked at all of that content that is given here in the beginning of chapter 1, chapter 3, verses 100 and pages 101 to top of page 107. और 100 इस तीसरे पाठ के 101 से लेकर 107 के ऊपरी भाग तक जो है 12वां पेज के ऊपरी भाग और 13वां पेज के निचली भाग में हमने उसको गहराई से देखा था। It's a repetition, so I'm not going to be explaining that again. और वो फिर से दोहराया जाएगा, इस कारण से मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। We'll study from page 107 how Jesus walked with the Father. हम लोग 107 में देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह जो है परमेश्वर के साथ चलता था। So the Lord Jesus came in whose name did Jesus do all the signs, miracles, wonders? और किसके नाम से यीशु मसीह ने ये चिन्ह और चमत्कार किए थे? Yes, in the Father's name. पिता के नाम से। So the Lord Jesus came in the Father's name. पिता के नाम से यीशु मसीह आया था to do the works and the will of the Father. ताकि परमेश्वर पिता का हित और इच्छा पूरा कर सके। And we are also called to do the Father's works just like Jesus. और हमको भी इसलिए चुना गया है ताकि हमको भी वही बुलाहट दिया है ताकि हम पिता का हित पूरा कर सके। So in lesson 3 we are going to be basically looking at how did Jesus walk with the Father. हम लोग तीसरे पाठ में देखेंगे कि यीशु मसीह पिता के साथ कैसे चलता था। And what was his relationship with the Father? और उसका जो रिश्ता था वो पिता के साथ कैसा था। So by looking at how Jesus communicated or related with the Father and his relationship with the Father,
we can also learn how we can relate with the Father so that we can flow in the supernatural. और उसका जो जिस प्रकार से वो रिश्ते में था पिता के साथ यीशु मसीह, उस प्रकार से हम भी देख सकते हैं कि उसके साथ रिश्ते रहने के साथ किस प्रकार उसके अलौकिक सेवकाई में हम बह सकते हैं। So we are going to learn how we can connect with the Father so that we can also do the works that Jesus did, and we can do greater works than what he has और done. हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम पिता परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं ताकि हम भी उस यीशु के समान उस सेवकाई को हम पूरा कर सके। Are you ready for that? उसके लिए तैयार हैं? Okay, the first thing we see that Jesus, what was the relationship we had with the Father? और यीशु और परमेश्वर के पिता के बीच में क्या रिश्ता था? We already Yes, what is the relationship between the Father and the Son? उस रिश्ते के अंदर क्या था? Okay, Jesus was in the bosom of the Father. What else did we study in Christology? और हम मसीह शास्त्र में क्या पढ़े थे कि वो पिता के Remember, भीतर था। we studied in chapter 2 the relationship of Jesus with the Father and the Holy Spirit. So what was the relationship that Jesus shared with the Father? हमने मसीह शास्त्र में पढ़ा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो संबंध है उसके विषय में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? What was the relationship between Jesus and the Father? पिता और पुत्र के बीच में रिश्ता क्या था? प्रेम का रिश्ता था, okay? They were very intimate, close. There was a very close relationship with each other. एक दूसरे से बहुत ही गहराई के साथ मिले हुए थे। Okay. Obedience. आज्ञाकारिता. What else? Yeah, very intimate, close relationship. Yes. एक गहराई का एक रिश्ता. And also, what was there between the Father and the Son? The relationship that they shared. और क्या ऐसा था जिसके जो उन दोनों के बीच में रिश्ता था जो एक दूसरे में होकर चलते थे? Yes, there was love. Okay. प्रेम था जरूर. Okay, what is the relationship they shared? Yes, they were all spirit being. वो सब आत्मा ही थे. There was unity and oneness with the Godhead, right? और उनके अंदर एकता था. Yes, there was intimate relationship, there was love, but there was also unity and oneness. उनमें एक गहरा रिश्ता था, प्रेम था, उसके साथ साथ उनमें एकता था और एक मन का अनुभव था उनमें. We read in John chapter 1 verse 8 that Jesus was in the bosom of the Father. हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:8 में पढ़ा था कि परमेश्वर के भीतर था यीशु मसीह. That means bosom. गोद में. Yes. Okay. उसके गोद में था यीशु मसीह. Jesus was that means very intimate, close oneness with the Father and the Son. और उसका मतलब ये है कि वो और पिता का एक गहरा रिश्ता था. We also see that, in John chapter 10 verse 30. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:13 में हम देखते हैं. 10:30. 10:30. माफ कीजिएगा, 10:30. Where Jesus says, I and my Father are one. उसमें लिखा हुआ है कि मैं और मेरा पिता एक हैं. It shows the closeness and the intimate fellowship with the Father and the Son. और वो हमें दर्शाता है कि पिता और पुत्र के बीच में जो एक गहराई का रिश्ता. Closeness and intimate relationship. एक करीबीपन का और एक गहराई का रिश्ता. So what is the result of this close fellowship? और इस करीबी रिश्ते का what is a close? What is the result of this close और fellowship? इस करीबी रिश्ते का परिणति फल क्या है?
Jesus says, I know the Father and the Father knows me. और उसमें यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता को जानता हूं और पिता मुझे जानता है। So that this means that there is perfect unity and complete agreement between the Father and the Son in everything. और उसका मतलब ये है कि उस पिता और पुत्र के बीच में सारे चीजों के में सहमति है। There's unity and complete agreement. उनमें एक एकता है और एक सहमति है। That is why often Jesus says, if you had known me, you had also known the Father. इसीलिए यीशु मसीह कई बार कहता है, अगर तुम मुझे जान गए हो तो तुम पिता को भी जान गए हो। Jesus says, he who has seen me has seen the Father. और यीशु मसीह कहता है, जो लोगों ने मुझे देख लिया उनने पिता को देख लिया। This is in John chapter 14 verse 7 and verse 9. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 7 and 9. 7 और 9वें पद में लिखा हुआ है। So this is an example that we need to follow just like Jesus did. और ये एक उदाहरण है कि हमें भी यीशु ने कैसे हमारे सामने एक उदाहरण दिया उसके प्रकार चलना है। How many of you like to do supernatural works? कितने लोग हैं आप में से जो अलौकिक सेवकाई करना चाहते हैं? Okay, good. If you want to do it, the first thing that you need to do is that you need to be in an intimate relationship or in the intimate presence of the Father always. और अगर आपको ऐसा सेवकाई करना है, आपको एक चीज करने की जरूरत है कि आप में और आपके परमेश्वर पिता के बीच में एक गहरा संबंध होने की जरूरत है। You need to be in the intimate presence of the Father always. और हमेशा जो है उसकी गहरे हुजूरी में उपस्थिति में बने रहना है। And your will should be aligned to His will. और आपका इच्छा जो है, आपका हित जो है, उसके हित के साथ संबंध में रहना है, एक होकर रहना है। Your desire should be His desire. आपकी इच्छा जो है उसकी इच्छा के साथ मेल खाना है। And when we do that, we will be able to reveal the Father in a perfect way, just like Jesus did. और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया, उसी प्रकार से पूर्ण रीति से हम भी हमारा We'll be able to reveal the और Father. हम भी उस पिता को हमारे जीवन से प्रकट कर सकते हैं। And you will also make the Father known to the people. और हम जो है लोगों के सामने पिता को दर्शा सकते हैं। So the first thing is you need to be in an intimate relationship with the Father. और पहली बात यह है कि हमें जो है एक पिता के साथ एक गहरा रिश्ते में बने रहना है। The second thing is you need to love the Father just like Jesus loved the Father. और दूसरी बात है, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने पिता को प्रेम किया, उस प्रकार से हमें भी प्रेम करने की जरूरत है। On several occasions, Jesus spoke of the Father's love for him. और कई समय पर कई अवस्था में परमेश्वर यीशु मसीह जो है पिता के प्रेम के बारे में कहता है। In the same way, we need to walk in the love of the Father. और उसी प्रकार जो है हमें पिता के प्रेम में चलना बहुत जरूरी है। If you want to manifest all the 9 gifts of the Spirit, अगर हम पूरे 9 के 9 पवित्र आत्मा के वरदानों को अगर प्रकट करना चाहते हैं, if you want to do the supernatural works, अगर हम अलौकिक सेवकाई करना चाहते हैं, if you want to do greater works than what Jesus did, और परमेश्वर यीशु मसीह ने जो महान कार्य किए थे अगर उसको करना चाहते हैं, then the second thing you need to do is you need to walk in the Father's love. और दूसरा चीज ये करना है कि हमें पिता के प्रेम के अनुसार चलना जरूरी है। Jesus said that his food or his nourishment or his sustenance was to do the will and to finish the work of the Father who sent him. और यीशु मसीह कहता था उसका आहार है कि वो पिता जिसने उसे भेजा है उसकी इच्छा को हम पूरा करें। And so we should also come to that place where we're saying, God, it's my will to do the works that you have asked me to do. और हम ऐसी एक अवस्था में हमें अपने आप को लेके आना है जहां पर हम कह सके कि पिता आपने मेरे जीवन में जो उद्देश्य रखा है उसको मैं पूरा कर सकूं। And just like Jesus lived yielded and dependent on the Father when he said, I live because of the Father, in the same way we need to be yielded to the Father. और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जो है
पिता का हित में अपने आप को समर्पित करके जीता था, उसी प्रकार हमें भी उसके हित के अनुसार समर्पित करके जीना जरूरी है। And we see that Jesus पूरी तरह से पिता के ऊपर निर्भर थे. We should also be fully dependent on the Father. और यीशु मसीह जो है पिता के ऊपर आश्रित होकर रहता था. We also, like Jesus, need to be yielded to the Father. और यीशु मसीह जो है पिता के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर था. Which means we should not act on our own will, in our own desire. उसका मतलब ये है कि हम हमारे इच्छा के अनुसार कार्य को करना नहीं है. And like Jesus said, I always do say and I always do act and say what my Father told me to do or asked me to say. और यीशु मसीह हमेशा कहता था कि जो मेरा पिता कहना चाहता है, जो मेरा पिता करना चाहता है, वो मैं करता हूँ. In John chapter 5 verse 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:17 में Jesus tells the crowd, यीशु मसीह लोगों को देखकर कहता है, my Father has been working until now and I have been working. और कहता है कि पिता जो है अब तक कार्य में लगा हुआ था और मैं भी उसके कार्य में लगा हुआ हूँ. So Jesus has just healed the crippled man. और यीशु मसीह ने वो लकवे और वो लंगड़े को चंगाई दिया था. The man who was the pool of Bethesda. और बेथेस्दा के नदी के कुंड के पास में जो लंगड़ा आदमी पड़ा हुआ था. So Jesus tells that, he's simply doing the work of the Father. और यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने पिता का हित पूरा कर रहा हूँ. And Jesus says the Father has been working until now and I have also been working. और वो कहता है कि अब तक मेरे पिता कार्य में था और मैं भी उसके कार्य में हूँ. What is Jesus meaning here, or what is he trying to say here? और यहाँ पर पिता यीशु क्या कहना चाहता है? He's saying that, I am co-laboring with my Father. उसका मतलब ये था कि मैं परमेश्वर पिता के साथ जो बाट जो रहा हूँ. He's co-laboring with the Father. उस पिता के साथ एक साथ मिलकर बाट जो रहा हूँ. So the ministry of healing, deliverance and the supernatural ministry that Jesus was doing is simply co-laboring with the Father. और इसका मतलब ये है कि मैं अपने पिता के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ. So the supernatural ministry that Jesus was doing, जो अलौकिक सेवकाई जो यीशु मसीह कर रहा था, he is basically co-laboring with the Father. वो इतना ही है कि वो पिता के साथ मिलकर काम में लगा हुआ था. So he's saying that the Father is working, so I am also working. उसका यही कहना था कि मेरा पिता काम कर रहा है, इसलिए मैं भी उसके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ. In the same way, we need to co-labor with the Father. और उसी के अनुसार, उसी जैसा हमें भी पिता के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है. Just like Jesus is a son of God. जिस प्रकार से यीशु जो है परमेश्वर का पुत्र था, And the same way we are sons and daughters of God. और उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. And when Jesus was co-laboring with the Father in doing the supernatural work, और जब यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का काम अलौकिक काम को कर रहा था, उनके साथ कर रहा था, co-laboring. What is the word for co-laboring? उनके साथ काम करना, साथ संगति So में. the same way we also need to co-labor with the Father. और उसी प्रकार जो है हम उसके साथ मिलकर काम करना है. Is the Father working even today? क्या पिता आज भी कार्य करने में लगा हुआ है? So that means we need to also work. और उसका मतलब ये है कि हमें भी काम करना जरूरी है. When he stops, we stop. वो जब रुकता है तो हमें भी रुकना है. He has not stopped working, so we should not stop working. उसने कार्य करने में रोक नहीं दिया, इसलिए हमें भी कार्य करना रोकना नहीं है. So doing the works and greater works, what Jesus said we can do. और यीशु मसीह ने जो महान कार्य किए और उसने बोला उससे भी जो महान कार्य करेंगे, It depends on seeing what the Father is doing. उसके ऊपर आधारित है कि पिता क्या कार्य कर रहा है, And doing in a like manner. और उसी प्रकार हम करें.
So how do we see what the Father is doing? और किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पिता क्या काम कर रहा है? So we need to pray and ask God and ask the Father to show us the greater works that we have not seen till today. और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें दिखाए वो कार्य जो आज, वो महान कार्य जो आज तक नहीं किया गया है। So pray and ask God, I want to do greater works, what you have asked me to do. और प्रार्थना करें कि पिता मुझे वो महान कार्यों को दिखाएं जो आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं। What are the greater works you want me to do? और क्या ऐसी महान कार्य हैं जो मेरे द्वारा आप करवाना चाहते हैं, Which I have not seen till today. और जिसको मैंने आज तक नहीं देखा है, Show me. दिखाएं। And the Father will show you. और वो पिता जो है हमें दिखाएगा। Say, Father, I want you to show me so that people can see, hear, and experience and marvel at and know your glory and experience you. और पिता से प्रार्थना करें, पिता दिखाएं ताकि हम उस कार्यों को कर सके जिसको लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाएं। So in the same way, we need to pray that same prayer. और उसी प्रकार हमें भी वो प्रार्थना करने की जरूरत है। When we do that, we are co-laboring with the Father. वो जब हम करते हैं, वो प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम उसके साथ मिलकर काम करते हैं। Why was Jesus able to do all the miracles? क्यों यीशु मसीह सारे चमत्कार को कर पाया? Because the Father was showing him and asking him and telling him what to do. क्योंकि पिता उसको दिखा रहा था और कह रहा था कि क्या कार्य करना है। And so he's saying, I'm co-laboring with the और Father. इसी कारणवश यीशु मसीह कहता है कि मैं उस पिता के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। The same way we need to co-labor with the Father. और उसी प्रकार हमें उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। The next thing we see is that Jesus was yielded to the Father. और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जो है उसके साथ Yielded to the Father. yielded को क्या बोलेंगे हिंदी में है? yielded. Yield. Y-I-E-L-D. Is there a Hindi for it? Just saying. समर्पित। Samarpit. हाँ, थैंक यू थॉमस भाई। समर्पित था। या आत्मा समर्पित। ठीक है। समर्पित। So we see that in सब चीजों में यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा समर्पित थे, ठीक है? And he desired not his own will, but he desired to do the will of the Father who sent him. और वो अपने इच्छा को नहीं करना चाहता था, लेकिन वो अपने पिता का इच्छा करना चाहता था जिसने उसको भेजा है। He did things that were always pleasing to the Father. उसने वो सब कार्य किए जो पिता को अच्छा लगता था। He did things that was out of love for the Father. उसने वो सब किए जो पिता के प्रति प्रेम के मनोभावना से। He did things that were in obedience to the Father's commands. और वो जो है पिता के आज्ञा के अनुसार किया था। And he had to choose to obey, to be obedient to the Father. और उसने ये चुन लिया कि मैं पिता को आज्ञाकारी बन जाऊं। In the same way, we need to be yielded to the Father. उसी प्रकार हमें पिता के सामने झुकना जरूरी है। समर्पित होना जरूरी है। We need to be yielded to the Father. समर्पित होना चाहिए। We need to be obedient to the Father. We need to be in love with the Father. हमें जो है उसके प्रेम के अनुसार कार्य करना है। हमें अपने आप को उसके आज्ञाओं के सामने झुकना जरूरी है। And we need to choose to obey the Father at all times. और हमें हमेशा जो है उस पिता की आज्ञा को मानना जरूरी है। The next thing is Jesus says, as my Father taught me, I speak. और दूसरी बात जो यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार से मेरे पिता ने मुझे सिखाया वो मैं करता हूँ, वो मैं बोलता हूँ। This is very, very powerful. वो जो है बहुत ही सामर्थी वचन है। Just imagine that, Jesus is saying, I'm learning from the Father. और ऐसा कल्पना करें कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपने पिता से सीखता हूँ। And whatever the Father revealed to him, he spoke to the world. और जो कुछ पिता ने उसके पास प्रकट करके दिया, उसने उस बातों को बोला।
And imagine all of these things, what we are talking about. We're not talking about Jesus who is God, but Jesus who is man. और ये सारी चीजों को ऐसे समझें कि जिस विषय में हम बोल रहे हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर के तुल्य था उसके बारे में नहीं, वो यीशु मसीह जो मनुष्य था। When he became man, we know that he laid aside or refrained from using his nature of God of being omnipotent, omnipresent and omniscient. और उसकी बात इस विषय में ऐसा है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी था, उस सारे महिमा को छोड़ के आया वाला व्यक्ति। Not छोड़ के आया है, he did त्याग not दिया। leave, he refrained from using it. त्याग दिया। Yes. उसने त्याग कर आया। छोड़ नहीं दिया था, लीव। he just refrained from using it. उस चीजों को में से करने से हट गया था। Yes. And so we studied this in Christology. हमने मसीही शास्त्र में इसको पढ़ा था। So we see that, that Jesus learned from the Father. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पिता से सीखता था। And that is why Jesus went away alone and spent time with the Father in the presence of the Father. और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एकांत में जाकर पिता के साथ समय बिताया करता था। And what he spoke in the public, or what he did, the healings that he did, is all what he has heard and listened to the Father. और उसने लोगों के सामने जो कुछ सेवकाई किया और जो कुछ बोला, वो एकांत में जो पिता के पास से सीखा और सुना, वो किया था। You think the Father is willing to teach all of you? क्या आप सोचते हैं कि पिता परमेश्वर आप में से सबको सिखाने के लिए तैयार है? Yes. Is he willing to reveal things to you? क्या वो सब चीजों को प्रकट करने के लिए तैयार है, आप सोचते हैं? Yes, but why don't we listen is because we don't go to the Father. हम इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते नहीं हैं। We need to go and hear and listen to him. और हमें उसके पास जाना और उसके पास से सुनने की जरूरत है। So when somebody asks you to preach or share in a Bible study group or in the church, और एक बाइबल पाठ के समय पर या कलीसिया के अंदर कोई परमेश्वर के वचन में से जब बांटने को आपको बोलता है, don't go to Google and search for some sermons. और गूगल में जाके किसी प्रचार को खोजे ना, Or don't go to APC website and look at some sermon which you can take and preach. और एपीसी के वेबसाइट में जाके कुछ वचन को मत ढूंढ लेना जो आप प्रचार कर सकते हैं। Sermons, already there are sermons. प्रचार, yes. प्रचार। So don't look at those things. Hear from the Father. उस चीजों को ना लें, अन्यथा उसके बदले पे आपको क्या करना है, पिता से सुने। So even when you're going for ministry, आप सेवकाई के लिए भी जब जाते हैं, say, God, what do you want to, what are you teaching me? What are you revealing to me? What are you telling me to tell the people? What do you want me to do? Ask the Father. और आप पिता से पूछें कि आप क्या मुझसे इच्छा करते हैं कि मैं करूं, क्या इच्छा करते हैं कि मैं बातचीत करूं। The same way we need to do, just like Jesus did. और उसी प्रकार हमें करना है जिस प्रकार से यीशु ने किया था। That's why Jesus knew exactly where he had to go. और इसीलिए यीशु को मालूम था कि सही जगह पर जहां जाना है। He knew what exactly he had to say, where he had to say, what he had to say. उनको सही रीति से यीशु को मालूम था क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किससे बोलना है। That's why he knew that he shouldn't go to Bethany, let Lazarus die, and the fourth day he went to Bethany. और इसी प्रकार उसको मालूम हुआ यीशु को कि उस समय बेथनी में नहीं जाना है, लेकिन लाजर के मृत्यु के 4 दिन उपरांत जाना है। So how did he know all this? Because the Father revealed it to him, and Jesus heard from the Father. और ये सारे चीजों को यीशु मसीह को कैसे मालूम चला? यीशु मसीह को पिता ने वो प्रकट करके बताया। We also see that Jesus was also conscious and yielded to the Father's timing. और यीशु मसीह जो है पिता के समय के अनुकूल और पिता के समय के अंदर समर्पित था। He was, we know that he waited for 30 years of his life to begin his ministry. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने 30 उम्र तक
इंतजार किया ताकि वो अपनी सेवकाई को शुरू कर सके। 30 years he waited. Why? Because he knew that it was the Father's timing. और वो 30वें उम्र तक इसलिए इंतजार किया क्योंकि वो जानता था वो है परमेश्वर पिता का समय। So you also need to know what is the Father's timing, what the Father wants you to do in this time and this season of your life. और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पिता का समय क्या है और इस ऋतु में पिता हमसे क्या करवाना चाहता है। So for example, some of you after this short-term Bible college course, और कुछ लोग आप में से कुछ लोग जो इस छोटे बाइबल क्लास के बाद you will be thinking, hey, what do I go back home and do? आप सोच रहे होंगे कि वापस मैं घर जाकर क्या करूं। I've learned all of these things. What will I do with these things? और हमने इस सारे चीजों को सीखा है तो इसके साथ हम घर जाके क्या करें। Or some of you might not be thinking anything. और ऐसा भी हो सकता है कुछ में आप लोगों में से कुछ सोच ही नहीं रहे हो। You will be thinking, चलो something will happen, कुछ भी हो जाता है, we'll go and see what we can do. और कुछ लोग आप में से ऐसा सोचेंगे यहाँ के समय के बाद जो होता है देखेंगे। So you just flow like that. और आप जो है बहाव के अनुसार बहते जाते But हैं। it's important for you to ask God, God, what next in my life? और लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है कि पिता आगे चलकर क्या, What is next after I finish this short-term Bible college? और पूछने की जरूरत है कि पिता इस छोटे से क्लास के बाद, कोर्स के बाद मैं करूं तो आगे क्या करूं। So you need to know what God is preparing and planning for you, and He will reveal it to you. और आपको जानने की जरूरत है कि प्रभु परमेश्वर क्या योजना आपके बारे में बना रहा है और वो यीशु मसीह जो है आपके जीवन में प्रकट करेगा। So some of you are very excited. You've learned so much. आप में से कुछ जो लोग हैं उत्साहित हैं कि हमें इतना कुछ सीखने को मिला। You will say, I'll go and start one church, or I'll start a Bible college, or I'll start a school, or I'll do this, I'll do that. You know, all those things. You're excited. आप बहुत ही उत्तेजित हैं और आनंद में है कि हम इस कोर्स के बाद जाके छोटा सा एक स्कूल खोलूं, मिनिस्ट्री सेवकाई करूं, इस सब के बारे में कलीसिया उत्साहित खोलेंगे है। या बाइबल कॉलेज खोलेंगे, कुछ भी। कुछ लोग जो म्यूजिक क्लास सीख रहे हैं, मैं जाके वर्शिप लीडर बन जाऊंगा। You know, you'll be thinking all of these things, which is good. और some of you will be thinking I will start a music class and all those things. ये सारी चीजें जो है आप योजना कर रहे होंगे, कल्पना कर रहे होंगे, It's good. वो अच्छी बात है। But you need to ask the Father if this is what His will is for your life. और लेकिन आपको परमेश्वर पिता का हित पूछना है कि क्या ये है आपकी इच्छा। Maybe God wants you to start a church or a Bible college. Very good. और हो सकता है कि पिता आप में से चाहता है कि एक कलीसिया का शुरुआत करे, एक बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम या बाइबल कॉलेज का आरंभ करें। Or maybe you want to be a worship leader. Very good. और हो सकता है पिता आपसे चाहता है कि आराधना को अगुवाई करने वाला व्यक्ति बने, बहुत अच्छा है। Or you want to go back home and get married. Very good. और हो सकता है कि आप वापस घर को जाएं, उसके बाद शादी करें, वो भी बहुत अच्छी बात है। But you need to ask the Father what is His will. और लेकिन हमें प्रथम काम ये करना है कि पिता से पूछना है कि हम करें तो क्या करें। You learn in fulfilling God's purpose for your life. और आपके जीवन का उद्देश्य को परमेश्वर के अनुसार पूरा करने को सीखना जरूरी है। You learned in that course fulfilling God's purpose for your life. और हमने सीखा उस पाठ्यक्रम में कि परमेश्वर के हमारे जीवन में उद्देश्य को पूरा करना, That there are different seasons in our lives. हमारे जीवन में एक एक ऋतुएं होते हैं And God prepares us for seasons. और परमेश्वर जो है उस ऋतुओं के हिसाब से हमें तैयार करता है। So when God knows the next season of your life, और जब यीशु मसीह जानता है कि हमारा आने वाला ऋतु क्या है, He will prepare you in this season. और इस ऋतु में उस ऋतु के लिए हमें तैयार करेगा। So ask God the Father, what is the next season of your life? और पिता से जरूर पूछे कि आने वाला ऋतु जो है प्रभु क्या है। And say, God, I'm yielded and submitted in this season to prepare for the next season. और इस ऋतु में प्रभु परमेश्वर मैं आपके अधीन में हूँ, आप में समर्पित हूँ कि आप क्या बनाना चाहते हैं भविष्य का ऋतु। And don't be in a hurry. और आप
जल्दी में ना रहें Don't be in a hurry even to do the supernatural ministry. और अलौकिक सेवकाई करने के लिए भी आप जल्दी में ना रहें, Because Jesus waited for 30 years before he started his ministry. क्योंकि 30वें उम्र तक प्रभु यीशु मसीह ने खुद इंतजार किया था ताकि वो सेवकाई शुरू करे And doing his first miracle. और पहले चमत्कार को करने के लिए। Which was the first miracle that Jesus did? पहला चमत्कार क्या था? Turning the water into wine. और पानी को दाखरस में बदलना। So we see that even there, Jesus, when his mother says, come and change the water into wine or make the provision, Jesus said, my time is not yet come. और वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह की माता जब उसके साथ सामने आके ऐसे एक परेशानी को बताते हैं तब वो बोलता है अभी तक मेरा समय नहीं आया। And Jesus waited for the right time when he heard from the Father and the Father asked him to do the works of what he said. वो इंतजार में था और सुन रहा था कि कब उसके पिता परमेश्वर उससे बोले कि ये है तेरा समय। The same way we need to wait and listen to the Father. और उसी प्रकार हमें इंतजार में रहकर पिता को सुनना बहुत जरूरी है। The next thing is Jesus was very confident in prayer, the Father's works. और the Father's works. और पिता का काम करने के विषय में जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत ही दृढ़ था। The way Jesus walked in close unity and fellowship and intimacy with the Father, जिस प्रकार से पिता के साथ यीशु मसीह एक गहरे रिश्ते में एक गहरे संबंध में चलता था, it made him very confident in prayer. और उस चीज में के कारण उसके प्रार्थना जीवन में उसको बहुत ही दृढ़ बना दिया। So one example we can see is एक उदाहरण हम ऐसा देख सकते हैं when Jesus was standing before Lazarus' tomb. और लाजर के मकबरे के सामने जब वो खड़ा हुआ था, Lazarus was dead now for how many days? और कितने दिन के लिए दिन से मर चुका था लाजर? Yes, 4 days. 4 दिन। And what does Jesus do? और यीशु मसीह ने क्या किया? He doesn't say, Father, please hear my prayer. Please raise up Lazarus from the dead. He's my good friend. Did he pray like that? और क्या यीशु ने ऐसा प्रार्थना किया, पिता वो लाजर मेरा दोस्त है, कृपया करके आप उसको मृतकों में से जिला उठें? Jesus simply prayed and thanked the Father that he has already heard his prayer. यीशु मसीह ने सिर्फ इतना किया कि उसने धन्यवाद दिया कि पिता आपने पहले से मेरी प्रार्थना को सुन लिया। And he says, I know that you always hear me. और वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आप मेरी बात हमेशा सुनते हैं। So there was this confident assurance that when Jesus prayed that his Father has heard him already and granted what he has asked. और वो धन्यवाद देता है कि उसके प्रार्थना को प्रभु ने पहले से ही सुन लिया है और उसका जवाब दे चुका है। This was how Jesus's prayer life was. ये था यीशु का एक प्रार्थना का जीवन। He knew that he was always heard and his petitions were always granted by the Father. और वो जानता था कि परमेश्वर पिता जो है उसकी प्रार्थना को सुनता था और उसकी प्रार्थना की इच्छाओं को पूरा करता था। So we need to come to that place of being confident in prayer like Jesus was confident in prayer. और यीशु मसीह जिस प्रकार से अपने प्रार्थना के ऊपर विश्वास में था, उसी प्रकार हम भी हमारे प्रार्थना जीवन के ऊपर विश्वास में होना है। Why was Jesus confident in prayer? क्यों यीशु मसीह इतना दृढ़ था अपने प्रार्थना में? Okay, he was always in the presence of the Lord. He was always praying. Why was the Father granting Jesus's prayer request? क्यों यीशु मसीह के प्रार्थना को हमेशा प्रभु परमेश्वर उत्तर देता था? हाँ? उसके ऊपर निर्भर था, okay? He was also hearing from the Father. He was obedient. Yes, he was obedient to the Father. He was praying and doing things, yes, according to the desire and the will of the Father. Yes. वो पिता परमेश्वर के हित के अनुसार और इच्छा के अनुसार
कार्य करता था। So when you pray according to the desire and will of the Father, the prayer request will be granted to you. और जब आप परमेश्वर पिता के हित के अनुसार और इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिल जाएगा। Another example that we can see in the Bible, और दूसरा एक उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। when Jesus multiplied the 5 loaves and 2 fishes. और यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को जब बांट कर दिया था, What did Jesus do before he gave out the 5 loaves and 2 fishes? यीशु मसीह ने क्या किया उसको बांटने से पहले? He just thanked the Father. यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दिया। He just took the 5 loaves and 2 fishes. He thanked the Father and he gave it to the disciples and they started distributing. और उसने वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को दे दिया ताकि वो बांट ले। So Jesus was confident that what he is asking the Father is already granted him. So he just is thanking the Father. और वो जानता था, उसके अंदर एक आत्मविश्वास था कि परमेश्वर पिता ने पहले से मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। And Jesus knew that each time he prayed to the Father, it will be granted to him. और वो उसमें एक विश्वास था कि जब भी मैं प्रार्थना करूं मेरा पिता मेरे प्रार्थना को उत्तर देगा। And he always expected his prayers to be answered. और वो उसका हमेशा एक उम्मीद था कि उसकी प्रार्थना हमेशा सुनी जाएगी। In the same way, God invites us to pray and walk in this manner each time we pray. और इसी प्रकार परमेश्वर हमें एक न्योता देता है कि हम उस यीशु के प्रार्थना के प्रकार चलें। We need to come to that place of confidence that every time we pray, our prayers will be answered. और उस अवस्था में आना है, उस मनोविश्वास में आना है कि जब भी हम प्रार्थना करेंगे यीशु सुनेगा। Don't think, hey, this is so impossible. और ऐसा न सोचे कि ये बहुत असंभव है। Don't think that, if I pray for this person, what if the person doesn't get healed? और ऐसा न सोचे अगर मैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं और अगर मेरी प्रार्थना सुनी ना जाए। What if, or we also can think, can God use me to heal or to do a miracle? और हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या प्रभु परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है उस व्यक्ति के जीवन में चंगाई आने के लिए। Or can God use me to do a miracle? क्या प्रभु मुझे एक चमत्कार करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? I'm a very simple person. मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। We should not have these doubts in our minds. और ऐसे संकोच भरी बातें हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। We need to be confident हमें जो है आत्मविश्वास से होना है that it's God's will to heal. और कि परमेश्वर का इच्छा है कि वो चंगाई दे। It's God's will to provide people food to eat. और परमेश्वर के इच्छा में है कि वो लोगों को खाना खाने के लिए दे। It's God's will that people be delivered from demonic oppression. और उसकी परमेश्वर की इच्छा में है कि लोग दुष्ट ताकतों से छुटकारा प्राप्त कर जाएं। It's God's will that we lack no good thing. और प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि हम किसी भी चीज में कमी ना हो। So when you pray according to God's will, और जब हम परमेश्वर की इच्छा और हित के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, be confident that your prayer is already answered. हम मनोविश्वास में बन जाएं कि वो पहले से मेरी प्रार्थना को सुन चुका है। That's why I said yesterday and day before yesterday इसीलिए मैंने कल और कल के पहले ऐसे बोला था that when you pray for healing for somebody कि जब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना, चंगाई के लिए प्रार्थना करें and you don't see full healing, you just see partial healing or no healing, और आप जब आधा चंगाई या चंगाई को ना देखें or you just thank God for what he has done. और आपको इतना करना है कि आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि इतना किया। And just pray, God, I have done what you've asked me to do. I believe that you are going to answer. और ऐसा बोले परमेश्वर को कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे जो प्रार्थना करने के लिए बोला, मैंने प्रार्थना किया, आप जरूर चंगाई डालेंगे। God loves a thankful heart. और क्योंकि परमेश्वर जो एक धन्यवाद भरी हुई हृदय से प्रसन्न होता है। God hates grumbling and murmuring. और परमेश्वर जो है
कुड़कुड़ाई करने वाले हृदय से नफरत करता है। You know, God has actually counted the number of times the Israelites grumbled and murmured in the desert. और मरुस्थल में जो इजरायलियों ने कितनी बार कुड़कुड़ाया, कितनी बार खिलाफत में बोला, वो सबकी गिनती रखी थी। And he tells Moses और वो मूसा से कहता है in Leviticus लेवियों की किताब में, that these people have grumbled against me or murmured against me 10 times. और वो यीशु परमेश्वर बोलता है कि उन लोगों ने मेरे खिलाफत में 10 बार कुड़कुड़ाई किया है। When I read that, I said, "Oh my gosh, God actually counts the times we grumble and murmur and complain." और तब मैंने जब इसको पढ़ा तो मैं सोचा, हे प्रभु, आप तो जो कुड़कुड़ाने के विषय को भी गिनती में रखते हैं। Not को भी गिनती में रखते हैं. I was just surprised that God even You keeps were account. shocked. You were Yes, yeah, mesmerized. yes. That's what I मैं said. चौंक गई थी कि ऐसे भी हो सकता है कि he counts the number of times and how much it hurts his heart. और मैं ये शकित हो गई कि हम जितना कुड़कुड़ाते हैं उसके भी परमेश्वर ध्यान में रखता है। And he does not, he loves a thankful heart and he hates people who grumble and murmur and complain. वो धन्यवादी हृदय वाले व्यक्ति से प्रेम करता है और कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति से घृणा करता है। So we're learning all of these things that how Jesus walked with the Father. और हम ये सब इसलिए सीख रहे हैं कि जान पाएं कि यीशु मसीह पिता के साथ कैसे चलता था, So that we can also walk like how we can walk with the Father. ताकि हम भी सीख जाएं कि किस प्रकार से हम पिता के साथ चलना है। Jesus set us a life example. यीशु मसीह ने एक जीवन का एक उदाहरण दिया था। He set us a life example coming down as a man. He said, I did all of these things. You can also do it. और उसने एक जीता जागता उदाहरण रखा कि मैं स्वर्ग से मनुष्यों के रूप में आया और किस प्रकार से जिया। So Jesus is our standard. He is our model. वो है हमारा प्रतिछाया। He is our standard and he is the perfect model for life and ministry. और हमारी सेवकाई और हमारे जीवन के प्रति वो एक उत्तम उदाहरण है। And he demonstrated to us what the Father's works are. और उसने हमारे सामने दर्शाया, यीशु मसीह ने हमारे सामने दर्शाया कि पिता का कार्य क्या है। And how to go about doing the Father's works. और किस प्रकार से उसकी कार्यों, पिता के कार्यों को हम लेकर कर सके। So how can we go about doing the Father's works? और हम किस प्रकार से पिता का कार्य को लेकर कर सकते हैं? How can we follow what Jesus did from what we studied? और अभी जो हमने सीख प्राप्त किया उसमें से हम यीशु मसीह के जीवन से कैसे हम सीख सकते हैं? सब लोग जागे हुए एक समय मत बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। एक साथ मत बोलिएगा, जिनको जवाब देना है कृपया हाथ उठा दें और उसके बाद बोलिएगा। So how did Jesus walk with the Father so that we can also learn to walk with the Father in the same way to do the supernatural works? और अलौकिक काम करने के लिए पिता के साथ किस प्रकार से यीशु मसीह चला, अभी के सीख में से आपको क्या समझ में आया? हाँ, कितना हम लोग देखे अभी के जो देखा है यीशु मसीह किस प्रकार से पिता, can you tell me one? Okay, he did the will of the Father. Okay, उसने पिता का इच्छा किया according to the will of God. Okay, will of the Father हो गया है। पहले बात हमने क्या पढ़ा? Okay, he was intimate, unity and oneness with the Father. Intimate, always close with the Father. और एक गहरा एकता में और एक मनोभावना में था पिता के साथ। What else? Second thing? आज्ञा पालन। Okay, love of the Father. Yes, second is पिता love. का प्रेम के प्रकार। Okay, प्रेम करीबी हो गया, प्रेम हो गया। Okay, yielded and submitted to the Father. वो उसके हित के सामने झुका और समर्पित किया गया। Okay, समर्पित हो गया। Okay, finished then. कैसे? Yes, he was assured in prayer or confident in prayer. Good. उसके अंदर एक आत्मविश्वास था प्रार्थना में। Okay, कैसे कदम बढ़ा के चले? वो हो गया सब।
और इच्छा कुछ इच्छा इच्छा मत बोलो, सब इच्छा हो कुछ गया, प्रेम हो गया, आत्मविश्वास हो हो गया। गए, obeys over. आज्ञाकारी। Yes, he was co-laboring with the father. पिता Yes, के साथ मिलकर काम कर रहा था and he always did what he always did what the father spoke, said, and did. और उसने पिता ने जो कुछ कहा, पिता जो करता था, पिता जो दिखाता था, सब कुछ किया। So that is how we need to do. और इसी प्रकार हमें भी करना जरूरी है। When we do the same thing, we will flow in the supernatural ministry. और हम जब वो प्रकार जो यीशु ने किया उस प्रकार से करेंगे तो उसके अलौकिक सेवकाई में हम उस बहाव में हो जाएंगे। Okay, we'll go for a break and come back. Thank you. हम लोग एक ब्रेक लेंगे और वापस आ जाएंगे। सुबह का ब्रेक कितने बजे खत्म होता है? 15 मिनट।